Hi, this is Ashita Gupta, and you're welcome to my channel, Exploring Education, where you don't just learn science, you experience science. So, today, before starting the video, I'm going to explain you two things. Recently, my mother told me to add some humor to my videos. I asked her why this idea. So, she gave me an answer which truly explained me everything. She told me that nowadays people are being affected by COVID. They are depressed and they need some joy in their life. But due to their studies, due to their stress for their future, they are unable to do so. So I have taken an agenda to create topics which are very much interesting and related to their syllabus, as well as they give a lot of joy to them. So let's start today. Okay, recently I performed turmeric as an indicator in one of my classes also, and now I'm gonna show you through this experiment. And what is my motive today? I want to make you realize that things around you have science hidden in them. Some people neglect sciences even and use things very often. Uselessly. Uselessly means the use that should be the correct use of that thing is not that thing. I got it, you got the humor. But it was a lame joke. I got it. So let's start. आज मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलूँगी because मेरी मॉम ने बोला कि those who people who comment in my videos tell me that we are not able to understand English. Oh, sorry. So, कुछ लोगों ने ये कहा मुझे और मेरी मॉम को भी सजेस्ट किया that I should again sorry मुझे हिंदी में वीडियोस बनानी चाहिए. तो मैं आज हिंदी में वीडियोस बनाऊंगी, पर थोड़े से जो टर्म्स हैं, जो रिलेटेड बातें हैं, वो मैं इंग्लिश में बोलूँगी बिकॉज इट इज़ माई गुड सब्जेक्ट, राइट? इट्स नॉट अ शो ऑफ. So today I'm taking a beaker, sorry, a test tube. Again, it was a humor. I knew it. It's a test tube. This is a dropper. This is a glass rod. Though it is having a platinum wire on top of it, but I use it as a glass rod for stirring. This is our universal solvent. सीधे सीधे बोला जाए तो ये पानी है, which is going to be our main content in all the things, यानी हमारा मेन कंटेंट है. और आज हम किचन से उठा लाए हैं अपनी हल्दी. अब ये हल्दी क्या काम करेगी आज? आपको पता है हल्दी में होता है करक्यूमिन. आपने कई एड्स में सुना होगा, कई जगह सुना होगा दैट हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटीसेप्टिक का तो ये काम करती है, बट हल्दी में होता है करक्यूमिन. क्या होता है? करक्यूमिन. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. और मैं आपको दो बातें और साफ साफ बता दूं. हल्दी इंडिकेटर का काम करता है. हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं. फर्स्ट इज एसिड्स, सेकंड इज बेसिस एंड थर्ड इज सॉल्ट्स. एसिड सॉर होते हैं जस्ट लाइक लेमन जूस, विनेगर, सिरका हमारा, लेमन का रस, और हमने अभी बोला सिरका. और भी कुछ ज्यादा एग्जांपल्स हैं इसके एसिड्स में, बट हम अभी इतने कंसिडर करते हैं क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी घर में अवेलेबल होते हैं. दूसरे होते हैं बेसिस, जो सोप वाली फील देते हैं, जो हाथ से फिसलन देते हैं. सॉरी, माय हिंदी इज वेरी मच बैड. तो बेसिस हैव अ सोपी फील. Just like I give you two examples. A shampoo, any kind of shampoo, detergent, or your liquid detergent.
or you can use this liquid soap as well. आपको पता तो चल ही गया होगा कौन सा है ये, विम बार का लिक्विड सोप है. Easy to remember, right? So let's start our video. मैंने यहाँ एक बीकर रखा है जो अब बिल्कुल काम नहीं आने वाला. ये ली मैंने टेस्ट ट्यूब. I hope it's visible, right? Yes. So with the help of this beaker, I'm gonna add some water in it. आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, टर्मरिक और हल्दी इज अ बेस इंडिकेटर. दैट मीन्स जहां पर भी बेस अवेलेबल होगा, और बेस भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल होगा, वहां पर आपको मिलेगा एक कलर चेंज. द येलो कलर ऑफ हल्दी गेट्स चेंज इनटू रेडिश ब्राउन और डार्क ब्लड रेड कलर. गॉट इट? तो सबसे पहले मैंने लिया पानी. मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट लूंगी जिससे मम्मी कपड़े धोती हैं. हाथों से ले ले. आई थिंक इट्स गुड, राइट? थोड़ा सा ऐड करा. ये देखो बॉटम में आ गया एकदम से ये. और पता है आपको, किसी भी टेस्ट ट्यूब को अगर आपको हिलाना हो तो कैसे हिलाते हैं? आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स इन स्कूल, राइट? होल्ड द टेस्ट ट्यूब and close it from the top by your thumb and shake it like this. Shake it until it gets completely dissolved, because you will get good observation if it's completely dissolved. आप अगर किसी ओपन वेसल में काम कर रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आप चम्मच ले लो, बट सिंस देखो थोड़ा सा ना झाग आ गया ऊपर, आई थिंक इट मे नॉट कंक्लूड अ कंफ्यूजन टू अस. तो मैं अब क्या करने वाली हूं, अब इसको हम बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन, बिकॉज हमने इसको पानी में मिलाया है. सॉलिड हल्दी और डिटर्जेंट अगर मिल जाए तो कोई रिएक्ट नहीं करेंगे. देखो ध्यान से देखो, इसमें अभी पड़े हैं तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं. बट अगर मैं यही हल्दी अब इस टेस्ट ट्यूब में डाल दूं और अगेन आई क्लोज इट फ्रॉम माई थंब एंड शेक इट, और ये देखो व्हाट अ कलर चेंज. ओ माय गॉड. एज आई टोल्ड यू, हमारा डिटर्जेंट कहलाएगा स्ट्रॉन्ग बेस. मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस में टर्मरिक कलर चेंज देता है. एंड इट गिव, हम इसमें क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे टर्मरिक गेव द पॉजिटिव टेस्ट फॉर डिटर्जेंट. गॉट इट? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. आई होप यू गॉट. सी, ब्लड रेड कलर अपेयर. मैंने वेस्ट को यहाँ ऐड कर रही हूँ. एंड आई वॉश द टेस्ट ट्यूब विथ सम वाटर अगेन. हाय, मेरी टेस्ट ट्यूब साफ हो गई अब. सी, और मैं स्पून भी ले. अब मैं स्पून क्यों लाई हूँ? बिकॉज मुझसे डर नहीं रहा था, सीरियसली. अब मैं क्या करने वाली हूं, आपको ये बिल्कुल पानी जैसा लग रहा होगा देखने में, देखो ट्रांसपेरेंट, बट असल में है ये विनेगर. व्हाइट विनेगर synthetically prepared from acetic acid. Did you get this? Vinegar actually 5% dilution of acetic acid होता है. That means अगर पूरी बॉटल में सिर्फ 5% acetic acid है, दो acetic acid अगर हम बोले तो हमें बचपन से यही बताया गया है that it is a weak acid. So I think if I use a dropper, add some
or I can add through my beaker only. मैं थोड़ा सा विनेगर अपने टेस्ट ट्यूब में ले लेती हूँ. दिस इज विनेगर, सिरका, जो चाउमीन में खाते हैं हम. एंड अ पिंच ऑफ हल्दी. अगेन क्लोज द टॉप एंड शेक. A very bright color appears of yellow haldi. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है that it is acidic. इसमें रेड ब्राउन कलरेशन नहीं आया, यानी रेड और ब्लड रेड कलर नहीं आया, इसलिए ये एसिडिक है. ओके, आई थिंक यू गॉट इट. अगेन आई एम गोना टेक I'm gonna wash my test tube once more. I hope it's well clear. I am taking this liquid soap in it. See? It's going inside. See? अब मैं क्या इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी? नो, आई टोल्ड यू दैट aqueous solution should be prepared, so I will add water in it. I hope it's visible. Again the same thing. Shake it. Till it's done completely. Done. I got foam over it, but I will control through liquid. देखो, ये हो गया हमारा aqueous solution of liquid soap. Let's add haldi over it. If it's so called base. Oh my God. मैंने अभी आपको बताया था दैट बेसिस इंडिकेटर है हल्दी, लेकिन अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो कलरेशन देके बताता है दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. अगर कलरेशन नहीं देता है, दो वी नो दैट दिस इज अ बेस, हाउ डू वी नो? सोपी फील. आप इसको ऐसे से रख के देखोगे ना तो आपको सोप जैसा फील आएगा, एंड यू विल गेट एन आइडिया दैट इट इज अ बेस. So, if it does not give the coloration, what does it mean? It means that it is a weak base. Hence, the liquid soap which our mother use in our kitchen to wash dishes is a weak base. सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? सरल शब्दों में ये कहा जाएगा कि जो लिक्विड सोप मम्मी बर्तन मांजने के लिए किचन में यूज करती है वो डिफरेंट होता है वो डिटर्जेंट से जो मम्मी कपड़े धोने के लिए यूज करती है. What does it means? It means that the kitchen soap is a weak base and bathroom or washing machine soap is a strong base. ठीक है? Yep. Let's change the apparatus. So I am back with my clean apparatus now, and अब मैं यूज करने वाली हूँ easy to locate whether it is a strong base or it is a weak base. So let's edit. ये मैंने थोड़ा सा इजी ले लिया अपने टेस्ट ट्यूब में, एंड विद दिस इजी आई एम, क्या अभी मैं इससे चेक कर सकती हूँ? मैंने अभी आपको बताया था ओनली द OS solution or the aqueous solution can give the test for the strong base. Okay.
नाउ सी, कंप्लीटली जब तक मिक्स ना हो जाए तब तक हम कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते। ये देखो, ऑलमोस्ट सारा हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करूंगी। आपको पता, रिसेंटली मुझे पता चला दैट हल्दी एक अदरक की टाइप की फॉर्म की भी आती है, एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड लुकिंग एट इट दैट आई डिडंट न्यू इट, though I was a bio student. See, no coloration. That means it is a mild soap again. Oh my god, it is a weak base. आपको पता है, इस एक्सपेरिमेंट से मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी। What you want? Okay, let me tell you. आपको पता है, यूजुअली हमारे जो किचन होती है या बाथरूम है, वहां पे हमें माइल्ड सोप्स यानी माइल्ड बेसिस ही दिए जाते हैं। माइल्ड मीन्स हल्के फुल्के रिएक्टिव होते हैं वो। और लेकिन अगर हम सावधानी ना बरते तो दे कैन कॉज डैमेज इफ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर यूज्ड। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रही हूँ तो वो मुझे डैमेज भी कर सकते हैं। अब जैसे आप कपड़े धोने वाले साबुन से बाल तो नहीं धो सकते ना, ऑब्वियस सी बात है, यू वांट सम नेचुरलिटी। हाँ, डैमेज हो जाएगा बालों को। अब ये देखो, ये है, जब भी मुझे समोसे खाने का मन करता है ना, मुझे इसकी याद आती है, बिकॉज जब उसके बाद एसिडिटी होती है ना, तो मुझे ये काम आता है, दैट इज इनो। इनो में भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ कुछ। आपको पता है, जब इसकी फिज वाली आवाज आती है ना, आई लव दैट फिज। सो लेट्स ऐड, यार साथ ही गिर गया। Let me or what? See, you know, आपने ये वाला सीन तो हमेशा देखा होगा। मम्मी कहती जल्दी पियो जल्दी पियो जल्दी पियो जल्दी पियो, लेकिन व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज लूज। ये व्यू है तब का जब ये थोड़ी देर बाद शांत हो गया, थोड़ा ऐसा ग्रीनिश टाइप का मेरे को लुक मिल गया। और थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ एक बार, ये कुछ बचा भी होगा तो कुछ दिखेगा नहीं। अब मैं इसमें टर्मरिक डाल सकती हूँ, जब वो रिएक्टिव हो तब मत डालना, नहीं तो सब बाहर आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा क्या था। ऐड हल्दी, और वही अपना पुराना काम, शेक 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 शेक। सी, नो कलरेशन चेंज, क्योंकि एक माइल्ड बेस होता है ये, सोडियम का सॉल्ट है बट माइल्ड बेस है, इसलिए कोई कलरेशन नहीं है। अगेन वी गॉट अ वीक बेस। बैक विद माई क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने एक मेन इंग्रेडिएंट छोड़ दिया है। अब वो इंग्रेडिएंट मैं खुद बता देती हूँ, उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में शिकायतें करें। दैट मीन्स कि एक इंग्रेडिएंट मुझसे छूट गया। लेट मी रिमेंबर। आई रिमेंबर, दैट इज लेमन जूस। सबसे पहला होता है, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा घर में अवेलेबल होने वाला, बट मैं कंफ्यूज थी तो आई फॉरगॉट। सीरियसली, आई अपोलोजाइज। नाउ मैं एक शैम्पू यूज करती हूँ बिकॉज आई कंसिडर इट एज माइल्ड, और ठीक है ये मेरे बालों के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सी, यही होता है जब आप पूरी तरह कंसंट्रेशन से काम नहीं करते हैं, आपकी वॉल्स पे इकट्ठे हो जाते हैं आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। सो आई विल ऐड वाटर साइमल्टेनियसली बाय टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब अगेन।
shake, 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 and you got some foam. अच्छा एक बात देखी, इसमें बहुत कम आया फोम एज कम्पेयर टू द लिक्विड डिटर्जेंट्स एंड ऑल, बिकॉज ये शैम्पू है यार. अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ. सी, लेट्स सी इफ इट्स कोल्ड रेड. भरोसा है मुझे इस वजह से. See, I won. It is a mild base again. वैसे अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता ना तो पता है क्या होता, मुझे आज रियलाइज होता दैट मेरे बाल डैमेज हो चुके हैं. इसीलिए कोई भी शैम्पू ऐसे मत यूज़ किया करो. पहले रीड द इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा सा उसके बारे में कंफर्म कर लिया करो, तभी ही कोई प्रोडक्ट यूज़ करो. आपके पास एक ही बॉडी है, एंड टू यूज़ इट वेरी 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 प्रेशियसली, यूज़ योर ब्रेन फर्स्ट. कुछ गर्ल्स का तो दिल आ जाता है प्रोडक्ट्स पे. इट लुक्स रेड, दिस बॉटल इज रेड इन कलर, आई लव दिस कलर, आई एम गोना बाय इट. अंदर क्या इंग्रेडिएंट है कुछ भी नहीं पता होता. तो पहले जाके उसका प्रोडक्ट्स पढ़ लीजिए, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उसको खरीदें. और देखिए कोई आपको रिकमेंड ढंग से कर रहा है या नहीं. ऐसे ही किसी से नहीं लेना. कुछ लोग जो घर पे बेचने आते हैं उनसे ही शैम्पूज वगैरह खरीद लेते हैं. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज मे बी दे आर नॉट द वेल पर्सन टू बाय और द राइट पर्सन टू बाय. और आप लोगों को कोई अच्छी ब्रांडेड चीज़ ही खरीदनी चाहिए सो दैट यू कैन ट्रस्ट द ब्रांड. ओके, तो ये था थोड़ा सा ज्ञान मेरा. बाकी अभी आज के लिए इतना था, और कुछ तो नहीं बचा. मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए जो भी घर पे अवेलेबल थे मेरे. बाकी अगर आपको कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट पता चलता है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस टर्मरिक का, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और हाँ, लेमन जूस को इंक्लूड मत करना, वो मैंने खुद भूला है. और आज का ह्यूमर थोड़ा बेकार था. आई विल ट्राई टू enhance my humor. I'm a very boring person, though. I will try to improve my humor. So, एक मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ रियलिस्टिक बातों पे. तो आप मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा टॉपिक बताओ जो साइंस से भी रिलेटेड हो और हमारे सोसाइटी की छोटी सोच से भी रिलेटेड हो. दैट मीन्स आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बॉडी. आजकल हर कोई फिटनेस फिटीक बनना चाहता है, राइट? लेकिन पता ही नहीं है व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीइंग फिट. दैट मीन्स अ स्मॉल S size top comes to your waist. It doesn't. ऐसा नहीं है. आपको हर कपड़ा फिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है यू आर फिट एंड फाइन. इस बारे में मैं कल आपसे बात करूंगी जरूर. ठीक है, तो ज्वाइन करिएगा मुझे जरूर. आज के लिए इतना ही. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार. और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में तो वो भी बताना. आई विल ट्राई टू डू इट. दिस इज अ न्यू चैनल एंड आई एम ग्रोइंग, सो हेल्प मी ग्रो बाय talking to me, by explaining me my faults and giving me like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.